حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا کہ اپنے جد امجد قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی بچی کا نکاح کیا بالکل سادے طریقے سے، مسجد میں جا کے نکاح کروا دیا، گھر والوں کو پتہ نہیں، اور داماد کو کہہ دیا کہ یہ تمہاری دلہن ہے، اس کو لے جاؤ۔ لیکن جب حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن تھے، انہوں نے جب قرآن پاک حفظ کیا، شاندار دعوت، شاہانہ دعوت، اور جب لوگ کھانا کھا کے چلے گئے تو فرمایا کہ میں نے یہ دعوت کی ہے، ایسی دعوت کے شاید آگے نہ کروں، اور تجھے میں نے قرآن سکھایا ہے، اللہ تجھے عزت بھی دیں گے، لیکن یہ قرآن میں نے تجھے اپنے لیے سکھایا ہے۔ ہم سب کے مخدوم محترم، ہم سبوں کے سرپرست سرمایہ ملت حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ، میرے مشرف و مکرم استاد محترم حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہ، علاقے کی معطر معزز شخصیات، علماء کرام، بستی کے اہل خیر حضرات، عزیز طلباء، انجمن اصلاح البیان کی آخری نشست میں شرکت کا موقع ملا، اور منتخب طلباء کے پروگرام کی سماعت کا موقع ملا۔ اس دور میں یہ مدارس اسلامیہ، اہل مدارس کی کوششیں کاوشیں بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اداروں کی پوری حفاظت فرمائے اور ہم سبوں کو ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے قابل احترام بزرگ اور بھائیوں، جس علم کے ساتھ یہ طبقہ وابستہ ہے، جس کو ہم علم نبوت کہتے ہیں، بڑا زبردست کامیابی کا ضابطہ لیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوات تسلیم براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاگرد، انبیاء اللہ کے شاگرد ہوا کرتے تھے، اللہ سے علم لیتے تھے اور انسانوں کو علم تقسیم کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوات تسلیم کو علم سکھانے کی نسبت قرآن کریم میں اپنی جگہ اپنی طرف کی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوات تسلیم کے علم سکھلانے کی نسبت اپنی طرف کی کہ ہم نے ان کو علم سکھایا۔ انبیاء انسانوں سے علم نہیں سیکھتے، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے تلامذہ ہوتے ہیں اور انسانوں کو علم سکھاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، 5 سال کے ہوئے ان کی والدہ ماجدہ نے ان کو مکتب بھیجا۔ استاد نے کہا کہو الف۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ الف کے کیا معنی؟ استاد کہنے لگے کہ الف کے بھی کوئی معنی ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب الف کے کوئی معنی نہیں تو کیا یہ مہمل کلمہ ہے؟ کیا یہ بے معنی کلمہ ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بے معنی کلمہ ہو۔ استاد کہنے لگا تم ہی اس کے معنی بتاؤ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استادی کی جگہ کو چھوڑو، تلامذہ کی صف میں بیٹھو، ہم تمہیں سکھائیں گے، بتائیں گے کہ الف کے کیا معنی۔ استاد اپنی اس مسلط کو چھوڑ کر تلامذہ کی صف میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام الف کے معنی بتاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر ایسا کلام کرتے ہیں کہ استاد دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ بچہ کہاں سے بول رہا ہے، یہ بچہ کہاں سے بول رہا ہے۔
किताब अल्लाह सारे कलामों का सरदार है। किताब अल्लाह को कलामुल्लाह कहा जाता है। कलाम उसको कहते हैं कि मुतकल्लिम जिसको बोले, मुतकल्लिम जिसका तकल्लुम करे। जितनी आसमानी किताबें हैं, सारी की सारी आसमानी किताबें कुरान मजीद को छोड़कर किताबुल्लाह है, कुतुबुल्लाह है। हकीकतन कलामुल्लाह नहीं, मजाजन कलामुल्लाह कहा जा सकता है। हकीकतन मेरे दोस्तों ये कलाम सिर्फ कुरान मजीद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तकल्लुम किया है। रिवायात में आता है इन्नल्लाह सुब्हानहु व तआला क़रा ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़ बिअल्फ़ि आम फलम्मा समिअतिल मलाइका अल कुरान क़ालत तूबा लिउम्मतिन यंज़िलु अलैहिम बिहादा तूबा लिअजवाफ़िन तहमिलु बिहादा तूबा लिअल्सिनतिन तंतिक़ु बिहादा। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों और जमीनों के पैदा करने से 1000 साल पहले सूरह ताहा और यासीन की तिलावत की। फरिश्तों ने जब सुना, कहने लगे कितनी खुशकिस्मत है वो उम्मत कि जिस पर ये कुरान उतरेगा, और कितनी खुशकिस्मत है वो जुबानें जो इसकी तिलावत करेगी, और कितने खुशकिस्मत है वो सीने जो इसको अपने अंदर महफूज करेंगे। कुरान उतरता था, अल्लाह का हुक्म उतरता था, तो मेरे दोस्तों फरिश्ते बदहोश हो जाया करते थे। जिब्रील अमीन होश में रहते थे। फरिश्ते थे कहते थे माता काला रब्बुकुम क़ालुल हक़्क़ व हुवल अलियुल कबीर। अल्लाह ने क्या फरमाया? कहते थे अल्लाह ने जो फरमाया वो हक है। मेरे दोस्तों ये कलामुल्लाह है, अल्लाह से निकला है। अल्लाह ने इसकी तखलीक नहीं की है। कुरान मखलूक नहीं है, बल्कि कलामुल्लाह अल्लाह की जात से निकला है। और मेरे दोस्तों कलामुल्लाह का पढ़ने वाला अल्लाह की जात से वाबस्ता हो जाता है। क्यों? कि ये उसके अंदर से निकला है। इन्नकुम ला तर्जून इलल्लाहि बिशैइन अफज़ल मिम्मा खरज अन्हु यानिल कुरान। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुम अल्लाह का कुर्ब उस चीज से बढ़कर किसी और चीज से हासिल नहीं कर सकते कि जो उसकी जात से निकला है, यानी कुरान करीम। जो उसकी जात से निकलने वाली चीज है, यानी कुरान करीम। मेरे दोस्तों यही वो कुरान है। अरब के बद्दुओं ने इसको सीने से लगाया, अल्लाह ताला ने 2/3 दुनिया का मालिक बना दिया। अरब के बद्दुओं ने इसको अपनी जिंदगी का दस्तूर बनाया, अपनी जिंदगी का लाहे अमल बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया के अंदर कामयाब कर दिया। आज के मुसलमान हम लोग कुरान करीम को छोड़कर दूसरी चीजों के अंदर मेरे दोस्तों तरक्की हासिल करते, तरक्की देख रहे हैं कि दूसरी चीजों के अंदर तरक्की है। मेरे दोस्तों कभी हो नहीं सकता कि हमें दूसरी चीजों के जरिए कामयाबी मिले, दूसरी चीजों के जरिए तरक्की मिले। तरक्की हासिल करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों कुरान से, और वो शख्सियत के जिस पर कुरान उतरा है, वो जात की जिस पर ये कुरान करीम उतरा है, जो सैयदुल बशर है। अजीब मेरे दोस्तों खैर दर खैर का सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला ने चलाया। खैरुल कलाम कुरान मजीद, खैरुल बशर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तलामीज़ा खैरुन नास। और जिस दौर के अंदर मेरे दोस्तों कुरान उतरा और जो खैर इन तबकात पे हावी रहा, वो खैरुल कुरून करनी तुम्मल लदीन यलूनहुम तुम्मल लदीन यलूनहुम। वो अफराद जो इस कुरान करीम को अपना शुगल बनाए, वो मेरे दोस्तों खैरुहुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। खैर दर खैर का सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला ने चलाया। इसलिए मेरे दोस्तों जितने अवाम हैं इन सबसे ये दरखास्त है कि सब इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम अपनी औलादों को आलिम बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे, कारी बनाएंगे इंशाअल्लाह। और हम भी कुरान करीम सीखेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिदों के अंदर कुरान करीम सीखेंगे और अपने अपने घरों के अंदर कुरान करीम का हल्का लगाएंगे। सैयदना अली करमल्लाहु वजहू ने, रावी कहते हैं मेरा गुमान यह है कि कुफा की मस्जिद थी, कुफा की मस्जिद में शोर सुना। लोगों से पूछा भाई काहे के शोर है? लोग कहने लगे लोग के जब लोग कुरान पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। सैयदना अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया तूबा लिहाउलाई नास, हाउलाई नास कानु अहब्बन नास इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुशकिस्मती हो इनको, मुबारक हो इनको, ये लोगों में अल्लाह के रसूल के सबसे ज्यादा प्यारे ये लोग।
सब इरादा करें हम अपने अइम्मा के पास इंशाअल्लाह कुरान सीखेंगे और अपने अपने घरों के अंदर बेचारे औरतों की जो जिंदगियां गुजर रही है सूरह फातिहा याद नहीं, इंशाअल्लाह अपने अपने घरों के अंदर कुरान करीम के हल्के कायम करेंगे। हदीस में आता है घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, और ये सब आज़म करें इंशाअल्लाह हम अपनी औलादों को आलिम हाफिज बनाएंगे। हज़रत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपना वाक़या लिखा कि अपने जद्द अमजद कासिमुल उलूम वल खैरात हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपनी बच्ची का निकाह किया बिल्कुल सादे तरीके से, मस्जिद में जाके निकाह करवा दिया, घर वालों को पता नहीं, और दामाद को कह दिया कि ये तुम्हारी दुल्हन है, इसको ले जाओ। लेकिन जब हाफिज मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद अर्जुमन थे, उन्होंने जब कुरान पाक हिफ्ज किया, शानदार दावत, शाहाना दावत, और जब लोग खाना खा के चले गए तो फरमाया कि मैंने ये दावत की है, ऐसी दावत के शायद आगे न करूं, और तुझे मैंने कुरान सिखाया है, अल्लाह तुझे इज्जत भी देंगे, लेकिन ये कुरान मैंने तुझे अपने लिए सिखाया है। मेरे दोस्तों, आखिरत का सरमाया होंगे हमारी औलादें, जिनकी तरबियत करके जाएंगे, जिनको नेक बना के जाएंगे, जिनके सीनों के अंदर कुरान होगा, हमारे लिए आखिरत का सरमाया। अल्लाह उन घरों के अंदर खैर उतारते हैं, बरकतें उतारते हैं कि जिन घरों के अंदर मेरे दोस्तों कुरान पढ़ा जाता है। हमने दुनिया को बहुत बड़ा समझ लिया है, दुनिया से तासुर हमारे दिलों के अंदर बहुत हो गया। साहबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन की जिंदगियों के औराक को खोल के देखेंगे तो मेरे दोस्तों दुनिया का तासुर नहीं। इसी वजह से अल्लाह माफ करे हमें अहले इल्म, पास अहले इल्म अपनी रोटी रोजी के मसले के हल के लिए दूसरे फनून सीखते हैं ताकि हमारा इससे मसला हल होगा। मेरे दोस्तों, ये इल्म तो वो इल्म है जिस पर फरिश्ते उतरते हैं, ये इल्म तो वो इल्म है जिससे बंदा अल्लाह के साथ वाबस्ता हो जाता है, रसूलुल्लाह के साथ वाबस्ता हो जाता है। कामयाबी जमानत लिए हुए, लेकिन यकीन न होने की वजह से, अमली जिंदगी की कमजोरी की वजह से मेरे दोस्तों हम ऐसा करते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने मन्नो सलवा उतारा था। वो कहने लगे हमें मन्नो सलवा नहीं, हमें तो क्या चाहिए, आधा सिहा व बसलिहा, प्याज और जो है ये दाल चाहिए। मेरे दोस्तों, ये आला चीज को अदना चीज से बदलना ये कोई अक्लमंदी नहीं। शेख इस्लाम हज़रत मदनी अलैहि रहमत फरमाया करते थे, ये तो ऐसा ही है जैसा कोई घोड़े पर सवार हो और फिर गधे पे सवार हो। इस इल्म की कदर हम नहीं करेंगे मेरे दोस्तों, दुनिया कभी नहीं करेगी। इसलिए हम सबसे पहले तो खुद इस इल्म की कदर करें। अल्लाह ने बहुत बड़ा सरमाया दिया है मेरे दोस्तों। सहाबा के पास यही था, पूरी दुनिया पे छा गए, दुनिया की चीजों को नहीं जानते थे। बात सहाबा के बारे में आता है, काफूर और नमक का पता नहीं, खाने के अंदर नमक की जगह काफूर डाल दिया, कहने लगे खाना कड़वा हो गया। नौमान बिन मुकरिब रज़ी अल्लाह तआला नहावन के इलाके के इस्लामी फौज के सिपह सालार थे, इस्लामी फौज के सिपह सालार अखरोट को देखा, कहने लगे सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कितना ही शानदार पत्थर बनाया। नहीं समझते थे कि पत्थर है ये क्या चीज। उसको तोड़ा तो अंदर से अखरोट निकला, फरमाने लगे सुभान अल्लाह, वाहे खुदा तेरी कुदरत कि तूने पत्थर के अंदर ग़िज़ा रख दिया, पत्थर के अंदर ग़िज़ा रख दिया। उनके साथी ने 3 दफे आके कहा कि बातिल पे हमला करो। कहने लगे मेरे दोस्त ये बात कहना चाहता हूं, फरमाने लगे मैं उस वक्त को जानता हूं जब अल्लाह की मददें उतरती। मेरे दोस्तों, वो दुनिया को नहीं जानते थे, आमाल की ताकत को जानते थे, शरीयत और सुन्नत की ताकत को जानते थे, गैबी निजाम को जानते थे कि किन आमाल के साथ, किन आमाल की बुनियाद पर अल्लाह ताला का गैबी निजाम ईमान वालों के साथ हो जाता है, किन आमाल की बुनियाद पर अल्लाह ताला तकदीरों के बदलने का फैसला फरमा देते हैं। मेरे दोस्त, इनको जानते थे, दुनिया को नहीं जानते थे। आज उन्हीं के नाम लेवा है, उन्हीं की रूहानी औलाद है। मेरे दोस्त, हमने दुनिया को बड़ी चीज समझ लिया, उसका तासुर हमारे दिलों के अंदर घुस गया। तो मेरे दोस्त, हम इस इल्म को जो अल्लाह ताला ने कामयाबी की जमानत देकर हमें दिया है, मेरे दोस्तों सबसे दरखास्त है कि हम इसकी कदर करें, इस इल्म को फैलाएं और जितना हो सके हर तरह से इस इल्म का और इसके इल्म का ताउन करें, इकराम करें, कदर करें। गलतियां हर एक में होती है, नाकदर
پادریوں سے میرے دوستو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے, آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں اپنی طرف سے اور ہمارے مخدوم معصوم حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے سارے محنت کرنے والے طلبہ, اساتذہ, اس ادارے کی انتظامیہ اور بطور خاص حضرت محترم حضرت جو کارگزار نائب محترم صاحب حضرت قاری عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو ہر طرح سے دین دونی رات چوگنی ترقیات سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.